CBSE Mathematics Class 12, Exercise 8.2, Question number 1. Find the area of the circle 4x square plus 4y square equal to 9, which is interior to the parabola x square is equal to 4y. अब देखिए एक सर्किल है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर के जगह पर 4y लिख दिया है। क्यों? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y गिवन है, हमने एक्स स्क्वायर के जगह पर 4y कर दिया प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी हमने इसको क्या किया, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, 4 से डिवाइड कर दिया है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4 वी विल गेट y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 9y इज इक्वल टू 0। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ y इज 4 एंड कांस्टेंट इज माइनस 9/4। So some little bit different method of factorization which I am going to describe here. You see that this plus 4, I have written it minus 4. If you multiply it, you will get the same result, plus 4 into y minus 9/4 is equal to 0. So half of the coefficient of y will be equal to minus 2. Half of the coefficient of y will be equal to minus 2 here. So minus 2 plus u and minus 2 minus u will be the two roots of this equation. Minus 2 plus u minus 2 minus u will be the two roots of this quadratic equation, and the product of the roots is equal to c by a. c by a का मतलब constant divided by the coefficient of y square, that is minus 9/4 divided by 1, that is the same thing. So here just solve it, a plus b, a minus b, that is 4 minus u square is equal to minus 9/4. So just transpose u square to the other side. So u square will be equal to 4 plus 9/4, it will be equal to 25/4. So now u square is equal to 25/4, take the square root. So u will be equal to plus minus 5/2. So the roots are minus 2 plus 5/2. देखिए एक बार u को रखेंगे, minus 2 plus 5/2, that will be equal to minus 4 plus 5/2, that will be equal to 1/2. Second roots will be minus 2 और माइनस u की वैल्यू है, माइनस ले लेंगे अब, दैट विल बी माइनस 5/2। 2 to the 4 minus 5 minus 4 और minus 5 minus 9/2. So the roots are 1/2 and minus 9/2. But here we will reject the y is equal to minus 9/2 because our parabola is on the upper side of the origin, you can say. So this minus 9/2 will be rejected, it being negative, क्योंकि y की वैल्यू इसमें पॉजिटिव आ रहा है। When y is equal to 1/2, this implies that x square will be equal to 4 into 1/2 because x square is equal to 4y. So x square will be equal to 4 into 1/2, that will be equal to, so therefore the x will be equal to
प्लस माइनस रूट टू, प्लस माइनस रूट टू। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इधर आ गया माइनस रूट टू 1/2, वाई की वैल्यू 1/2 आ गया, इधर प्लस रूट टू and 1/2. These are the point of intersection. If you drop perpendicular, you will get minus root 2 here. If you drop perpendicular here, you will get root 2 and 0. Here it will be root 2 0. Here it will be root 2 0. So the point of intersection root 2 1/2 and minus root 2 1/2. Now 4x square plus 4y square is equal to 9. This implies that y square will be equal to 9 minus 4x square by 4. So that will be equal to 9 by 4 minus x square. Now the same thing can be written like this, y will be equal to the roots of 3/2 का whole square minus x square. This will be our first equation. Now the parabola 4y is equal to x square. So here y will be equal to x square by 4. This will be the second. So the area of the shaded part will be equal to, अब देखिए ये जो कर्व है सर्किल का जो एरिया निकालेंगे इन द इंटरवल -2 टू √2, -√2 से लेकर के √2 तक का जो एरिया निकलेगा माइनस पैराबोला का, इस सर्किल का एरिया माइनस पैराबोला का एरिया, सेम थिंग हैज बीन डन हियर। देखिए आप यहाँ पर हमने क्या किया है, √3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये है किसका, √3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √2, it will be x square by 4 dx। देखिए ये हमने निकाला था, इसमें से सर्किल का एरिया को हमने यहाँ पर लिख दिया, y की वैल्यू y इंटू dx होता है नॉर्मली क्या है एग्जैक्टली होता है, ये एरिया ऑफ द पार्ट जो होता है स्ट्रिप्स का मीन्स y इंटू dx। तो y की वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर, देखिए y की वैल्यू है सर्किल से निकाला है, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। हियर y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। दिस इज पैराबोला से y की वैल्यू निकाला। अब देखिए सर्किल ऊपर है, सर्किल माइनस पैराबोला, हमने ये कर दिया। अभी इसको इंटीग्रेट कर दिए, लिमिट हमने लिख दिया है 0 to √2, 0 से लेकर के √2 तक, 0 से लेकर √2 तक x की वैल्यू है। हम इसका निकालेंगे, इसका जस्ट डबल कर देंगे इस वाले का, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो देखिए हमने 2 लिख दिया पहले ही, ब्रैकेट से बाहर 2 लिखा है इसलिए कि ये पार्ट और ये पार्ट टोटल एरिया एंड दे आर सिमेट्रिकल, hence इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to √2 रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to √2 एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। देखिए मैंने इसको सेपरेट किया है, 2 रखा बाहर, x/2 फार्मूला याद होगा आपको, x/2 रूट ऑफ जो रूट में लिखा हुआ कंप्लीट यहाँ पर लिखिए, x/2 करने के बाद रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
3/2, 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। x बाई ए का मतलब हो गया यहाँ पर 3/2, so 0 to √2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, देखिए ये 2 इधर आ जाएगा, ये वाला जो 2 है यहाँ पर 2/4 यहाँ से ले लिया और 2 यहाँ से ले लिया, सो 2/4 दैट विल बी इक्वल टू 1/2। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 आएगा, सो 0 to √2। नाउ 2 I have taken outside of the bracket, so √2/2 in bracket 9/4 minus 2। अब मीन्स अपर लिमिट हम रख रहे हैं, अपर लिमिट क्या है √2 है, सो हम हियर आई हैव रिटन इन प्लेस ऑफ x आई हैव रिटन √2। हियर अगेन √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, हमने इस तरह से लिख दिया, प्लस देखिए ये 3/2 था, उसका स्क्वायर किया तो 9/4 हो गया, 9/4 से 2 पे मल्टीप्लाई किया 9/8 साइन इनवर्स 2√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा और √2x की वैल्यू रख दिया, तो 2√2/3, ये ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब देखिए ये जो 1/2 आया था, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/6 हो गया, और √2 को का थ्राइस क्यूब का दीजिए, √2 इंटू √2 3 टाइम्स मीन्स क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो 2 रूट से तो 2 आ जाएगा, 1 रूट बचा रह जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2√2/6। ये 1/6 देखिए यहाँ पर 1/6 कर दिया, इसको 2 से कैंसिल किया 1/3 आ गया, 1/3√2। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया, यू विल गेट हियर 4 2 जा 8, 9 - 8 दैट इज 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 9/4, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये बाहर आए 2 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को कैंसिल करेगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस, अब इसको मैंने 1/3√2, तो √2 मैंने कहा मैंने यहाँ से √2 और यहाँ से √2, 2 जगह से √2 है, तो दोनों जगह से √2 कॉमन लिया, इन ब्रैकेट में क्या बचा 1/2 माइनस 1/3, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट, दिस विल बी द आवर आंसर। अगर इसको भी फर्दर सॉल्व करना है तो 3 1 जा 3 2 6 को ले लीजिए, तो 1/6 आ जाएगा इसका आंसर, इस पार्ट का 1/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। फर्स्ट कर्व है x-1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो द सेंटर ऑफ दिस सर्किल विल बी x - h, y - k का होल स्क्वायर होता है, h और k वहाँ पर सेंटर होता है, यहाँ पर क्या है h इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 0, मीन्स सेंटर इज 1 एंड 0, रेडियस इज 1 यूनिट। हियर x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, द सेंटर इज 0 0, रेडियस इज 1 यूनिट। अब इस एरिया के अंदर, दोनों सर्किल के अंदर जो एरिया बाउंडेड है उसका हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। लेट अस प्रोसीड।
फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है जिसका सेंटर है 1 0, इसका सेंटर 0 0 है। दोनों एक दूसरे को आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? Q पॉइंट पर। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज Q। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हमने एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1। x इज इक्वल टू x माइनस 1 नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा पॉसिबल भाई? x माइनस 1, क्योंकि अगर x से कम करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, सर्किल ही नहीं मिलेगी। x माइनस 1 देखिए, x का x प्लस माइनस तो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि में 1 से माइनस हो जाएगा, x नॉट पॉसिबल। सो x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस वाला पार्ट को लेंगे, ऊपर वाला जहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस 1 है। अगर हम प्लस लेते हैं x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तब देखिए x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट पॉसिबल। Therefore, the x is equal to minus x plus 1. So 2x is equal to 1. So therefore, the x is equal to 1 by 2. Means इसका जो Q पॉइंट का इंटरसेक्शन होगा, इसका एब्सिसा जो होगा 1 by 2 होगा। अब 1 by 2 हम रख देते हैं। 1 by 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So the y square will be equal to 1 minus 1 by 4 and it will be equal to 3 by 4. So y will be equal to root of प्लस माइनस रूट ऑफ 3 by 2। 3 by 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 का 2 हो गया, रूट 3 कर दिया, प्लस माइनस। सो द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 4 पार्ट है। देखिए A1 A2 A3 A4 किया हूँ मैं। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4। द रिक्वायर्ड एरिया 4A1 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, मैं इधर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दिया है हर एक पार्ट का। तो अब देखिए, इसमें अपर पार्ट कौन सा है? ये वाला। और यहाँ पर एक्स एक्सेस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स एक्सेस का y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस पार्ट मीन्स राइट साइड का जो पार्ट है उसका इक्वेशन प्लस माइनस इसका इक्वेशन। देखिए ये किया मीन्स y dx, दैट इज फर्स्ट वन, एंड एक्स एक्सेस देखिए 1 by 2। 1 by 2 क्या है? ये है 1 by 2 0 है इसका कोऑर्डिनेट, 1 by 2 एंड 0। सो 1 by 2 से लेकर के 1 तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 1 by 2 से 1 तक लिमिट, 1 by 2 से लेकर के 1 तक 4 टाइम्स ऑफ y dx। 4 टाइम्स ऑफ y dx मीन्स इसका एरिया का 4 टाइम्स, माइनस 4 इंटू वाई डी एक्स 1 by 2। अब ये क्या है? एक्स एक्सेस है, y इज इक्वल टू 0। देखिए जो कर्व है सर्किल का वो हमने लिखा है 1 माइनस 4 इंटू 1 by 2 से लेकर के लोअर लिमिट 1 by 2 अपर लिमिट 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 इंटू 0 डी एक्स मीन्स 0 का तो 0 हो जाएगा। even though because y is equal to 0 is the equation of the x axis। तो ये x एक्सेस का है क्योंकि ये लाइन x एक्सेस का है, तो इसका और इसके बीच में चलिए 4 बाहर है, ब्रैकेट से बाहर x by 2 सिंपल इक्वेशन यह है रूट्स का। सो x by 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 2 साइन इनवर्स x
ये फार्मूला है इसके लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूले के अनुसार मैंने ये लिख दिया है। अब आ जाइए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, मैंने -0 कर दिया है 4 इंटू। अब देखिए पहले अपर लिमिट लिखेंगे, सो 1/2 एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, रूट 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब 1/2 रखेंगे, 1/2 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। हियर इट विल बी 4 इन ब्रैकेट, 0 हो जाएगा, क्यों 1 माइनस 1 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ 1/2 साइन इनवर्स 1 1/4 हो जाएगा, 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4, तो रूट 3/4, तो सॉरी रूट 3/2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, रूट 3। देखिए 4 1 जा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट 2 लिख दिया मैंने, सो रूट 3/2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 किस में होता है, π/6 में, और साइन इनवर्स 1 किस में होता है, π/2 में। देखिए 4 यहाँ पर रखा, 1/2 π/2 माइनस रूट 3/4 माइनस 1/2 π/6। अब इस जो 4 था, 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया हर एक में। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखिए यहाँ से यह है 4, तो हमने यहाँ से 2 निकाला और यहाँ से भी 2 निकाला तो 4 कर दिया, और यहाँ से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 2 लिया, और इस 4 को कैंसिल करके 2 लिख दिया। सो वी आर लेफ्ट विथ इनसाइड द ब्रैकेट π/2 माइनस रूट 3/4 माइनस π/6। मैं यहीं से रूट कॉमन, सॉरी 2 कॉमन लिया है डिनोमिनेटर से, और इस 4 को कैंसिल कर दिया है। सो वी आर लेफ्ट विथ नाउ, हमें मल्टीप्लाई 2 π/2 में तो पाई मिलेगा, फिर इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो रूट 3/2 मिलेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो π/3 मिलेगा। सो π-3 यहाँ से लेके π-3 रूट 3/2, इस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कैंसिल होकर के रूट 3/2 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली देखिए पाई माइनस π/3 है, सो दैट विल बी इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 माइनस 1 दैट इज 2 π/3 माइनस रूट 3/2, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, 2 π/3 minus root 3/2 will be required answer. Now come to the question number 3. Find the area of the region bounded by the curve y is equal to x square plus 2, y is equal to x. अब देखिए y is equal to x square plus 2 is a parabola and passing through the origin. देखो y is equal to x, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन which is passing through the origin in the first and third quadrant से। y is equal to x, it is passing through the origin, क्योंकि कोई भी टर्म y और x के अलावा नहीं है, it means that this line is passing through origin। x is equal to 0, that is y axis, x is equal to 3, it is the line parallel to the y axis। देखिए मैंने हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पर, पैराबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, x is equal to 0 that is y axis, x is equal to 3 the line parallel to the y axis। Now come to here, y will be equal to x square plus 2, y is equal to x square plus 2 दिया y है, देखिए पैराबोला का। तो हमने क्या किया यहाँ पर, y is equal to 0 plus 2, 0 plus 2 and y is equal to 2, the vertex 0 और 2 हो जाएगा, 0 और 2 हो जाएगा। y is equal to x square plus 2, y is equal to 3 का स्क्वायर किया प्लस 2, that will be equal to y is equal to 9,
Now proceed here. देखिए ये पैराबोला है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका जो वर्टेक्स है 0 2, एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री आल्सो। दिस पॉइंट इज 3 3, दिस लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सेस, x इज इक्वल टू 3, और एक लाइन दिया हुआ ये y that is x is equal to 0, x is equal to 0, this is the point of origin, that is 0 0, x is equal to 3, y is equal to x, the point of intersection is that is 3 and 11 here, 0 2. Now area of the bounded region will be upper curve minus lower curve. अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0 to 3, 0 से लेकर के 3 तक, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। देखिए वाई इज इक्वल टू है, वाई इज इक्वल टू एक्स है, हमने लिख दिया है एक्स डी एक्स 0 to 3 इस लाइन। दोनों का लिमिट सेम है। देखिए अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x और अब लोअर लिमिट 0 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दैट इज 0 to 3। सो हियर इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, अपर लिमिट से। सो एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस 2 into 3 माइनस 0, अब यहाँ पर करेंगे माइनस 3 की पावर 2 बाई 2, 3 की पावर 2 बाई 2, इसको सॉल्व किया, हियर यू विल गेट 9 प्लस 6 माइनस 9 बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 15 माइनस 9 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 21 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स ऑल।